हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। We discussion most important chapter here, heredity and evolution. That is a class 10 CBSE NCERT Science and Technology book here. That's important chapter. But here question arrive here. What is a DNA and function? What is a DNA? And write the function. That's important question here. DNA and function first of all here. And first of all you understand what is the full form of DNA. You know that the full form of DNA here, deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is a polymer composed of two polynucleotide chain that coil around each other to form a double helix. The polymer carries the genetic instructions for the development and functioning, growth and reproduction of all now organism and many virus. DNA is a ribonucleic acid or nucleic acid also here. You know that. I repeat again, the DNA here or DNA is full form here, deoxyribonucleic acid is a polymer composed of two polynucleotide chain that coil around each other, and also here a double helix. And here important point here, the polymer carried genetic instruction for the development, functioning, growth and reproduction of all the organism and many virus. That's important here. And also important here, show this picture here. You know that in this picture there is a helical structure of DNA here. The clear, they are joined to the each other. There is a most important here, a four part here. There is a four part here. There is a adenine, thymine, and guanine and cytosine. Mean A attached to here T and G attached to the C. That's important here. There is important. First of all, see to the upper side here. You know that here a pink color. There is a represent have adenine and attached by here thymines. That's important. And other part is here second number. They're attached by the guanine and they're attached by the cytosine. That's important point here. There is attached by the AT and GC. Note that this important helical structure for the exam view here, and that's important picture here. And here nucleic acid, the organic component known as the nucleic acid, and can be found in the form of DNA or RNA in all living thing. That's important here. There is a DNA and RNA in all living things present here. And this nitrogenesis basis, you know that this is a nitrogenesis basis. Sugar molecules and phosphate group are the joined by the various bond in a series of sequence to generate this nucleic acid. The DNA structure define the basic genetic makeup of our body. That's important here. The DNA structure define the basic genetic makeup of our body. And DNA is responsible for the carrying and transmitting to the heredity material or genetic instruction from parent to offspring. That's the most important here. In addition to be ensuring that all living things pass on their genetic information. That's an important function here. In addition to ensuring that all living things pass on their genetic information, and DNA is essential for the synthesis of protein. The DNA here, a synthesis of protein. A nuclear DNA is the DNA that is found in the nucleus of each eukaryotic organism cells here.
That's important point here. The majority of organisms genomes are coded for by it, with the remaining genomes began to be handled by the plastocyte and mitochondria DNA. And the mitochondria DNA refer to the DNA that is found in the cell's mitochondria. And also here, similar to this, plastocyte contain their own DNA and the crucial for the photosynthesis. That's important function here. Know that important function on your screen. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता और विकास, क्लास 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि डीएनए क्या है और इसके कार्य क्या हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे देखा जाए तो सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रखता है ये, क्योंकि यहाँ पर डीएनए और इसके कार्य प्रणाली के बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा करना है और समझना है हर एक बात को, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं अगर डीएनए के सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करें, इसके पूरा नाम की बात करें तो इसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना एक बहुलक है जो एक डबल हेलिकल बनाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होती हैं। कुंडलित का मतलब होता है दोस्तों कि एक कोयल बना के रहते हैं ये। और पॉलीमर्स सभी जात जीवों और कई वायरस के विकास, कामकाज, वृद्धि और प्रजनन के लिए आनुवांशिक निर्देश देता है। देखा जाए तो डीएनए एक अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ देता है और डीएनए का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं ये पॉलीमर्स सभी जीवों में, इवन कि वायरस तक भी, विकास के, कामकाज और वृद्धि प्रजनन के लिए आनुवांशिक निर्देश देता है। डीएनए के कारण ही सब निर्देश जो है हासिल होता है। डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसानों का जो संरचना तैयार होती है वो कहीं ना कहीं डीएनए का एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। और ये कहते हैं जीवों में और कई तरह के वायरस के विकास में, उनके कार्य प्रणाली में, उनकी वृद्धि में, प्रजनन में जो सारी कार्य जो करते हैं वो सारे के सारे जो है डीएनए उनको निर्देशित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब चलिए देखते हैं कि डीएनए के जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है, डबल कुंडलित स्ट्रक्चर होती है और ये चारों ओर कुंडलित होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं। हम डायग्राम देखेंगे तो हमें और बात जो है समझ में आएगा। यहाँ पर आपके समक्ष जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पिक्चर दिख रहा है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से कभी नहीं जो है मिलते हैं आपस में, इनमें दूरियां हमेशा बनी रहती है। जब हम इसको लिखते हैं या बनाते हैं तब हमें लगता है कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे सांप एक दूसरे के जुड़े होते हैं वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बीच जो है 4 तरह के फैक्टर काम कर रहे होते हैं। एक होते हैं एडेनाइन, दूसरा होते हैं थायमोमाइन, तीसरा होते हैं ग्लूकोनाइन्स एंड साइटोसाइन। ये आपस में दोनों को जो है दूरियां बना के रखते हैं और सारे सूचक जो होते हैं इसी के अंदर विद्यमान होते हैं। यानी इसको ए के साथ टी के ज्वाइंट होता है और जी के साथ सी का जो है ज्वाइनिंग होती है। जैसे आप देख भी रहे होगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पिंक, ग्रीन, येलो, रेड ऐसे आपको दिख रहे होंगी। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एडेनाइन जो होता है अटैच जो कि आपको पिंक कलर दिख रहा होगा वो एडेनाइन है, और जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो थायमोमाइन है। यानी इसको हम ए और टी कह सकते हैं। ए जो है टी के साथ ज्वाइन करता है। और इवन देखा जाए जो आपको रेड येलो दिख रहा है तो यहाँ पर रेड जो होगा वो 9 होगा और दूसरा जो होगा आपको ब्लू दिख रहा है वो साइटोसाइन होगा। तो ये आपस में जो ज्वाइंट रखते हैं और कई तरह की इन्फॉर्मेशन इनमें विद्यमान रहती है जो आगे जो है दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डीएनए स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है, एग्ज़ाम भी उससे भी महत्वपूर्ण है और समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ है।
अब देखिए, जब हम यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर देख लिए हैं डीएनए के, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। अब हम इसके डीएनए के कार्य के बारे में देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण जो है मानव शरीर के साथ जो वायरस होते हैं उनमें भी कितने महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कहते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के रूप में जाने जाने वाले कार्बनिक घटक सभी जीव और चीज़ों में डीएनए या आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। कहते हैं कोई भी जीव हो, कोई भी घटक हो, उसमें जो है डीएनए या आरएनए किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य होते हैं और इनका कार्य प्रणाली देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि ये नाइट्रोजेनस आधार यानी चीनी अणु और फास्फोरस समूह इन जो है न्यूक्लिक एसिड को उत्पन्न करने के लिए अनुक्रमों का एक श्रृंखला में विभिन्न बंडलों से जुड़े हुए होते हैं। जो हमने अभी बंडल देखा, जो 2 हेलिकल स्ट्रक्चर देखी गई थी, वो एक तरह से बंडल से जुड़े हुए होते हैं। और डीएनए संरचना हमारे शरीर की मूल आनुवंशिक संरचना को प्रभावित करती हैं। कहते हैं डीएनए के अंतर्गत ही हमारे शरीर का जो है निर्माण हुआ है। हमारे अंदर जो डीएनए आया है वो माता पिता के अंतर्गत आया है और ये डीएनए संरचना हमारे शरीर के मूल आनुवंशिक संरचना को ही प्रभावित कर रहे होते हैं। डीएनए जो होता है माता पिता से संतान तक वंशगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देश को ले जाने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको लगता होगा कि डीएनए बहुत साधारण है, लेकिन हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं डीएनए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप ये सोचते होंगे कि सारे गुण आपको माता पिता वाला ही मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं डीएनए जो होती है हमारा वंशगत सामग्री को जो है आनुवंशिकता को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। आपके अंदर गुण जो होगा यहाँ पर नाना नानी और दादा दादी के भी आ सकती हैं या उनके आगे जुड़े हुए जो है पेरेंट्स के भी आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको माता पिता का ही गुण मिले, आपको दादा परदादा नाना कहते हैं अलग जनरेशन तक के भी आ सकती हैं। तो ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन को जो है अगले जीवों तक पहुंचाने का कार्य, सारे के सारे कार्य जो होता है डीएनए के द्वारा ही होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि माता पिता से संतानों तक वंशगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देश को ले जाने और प्रसारित करने का जिम्मेदारी जो होती है केवल डीएनए का ही होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी जीव चीज़ें अपनी आनुवंशिक जानकारी प्रसारित करती है, डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यानी डीएनए जो हमारा बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी जीव और चीज़ें अपनी आनुवंशिक जानकारी प्रसारित करती है, सारे के सारे बातें जो होता है डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए तो परमाणु डीएनए वह डीएनए है जो प्रत्येक यूकैरियोटिक्स जीवों की कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक जितने भी होते हैं बहुकोशिकीय जीव, उनके कोशिका के केंद्र में ये पाए जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जीवों के अधिकांश जीनोम को इसके द्वारा कोडित किया जाता है। जितने भी जीव होते हैं उनके जीनोम को जो है डीएनए के द्वारा जो है कोडित किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और से जीनोम को प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि से जितने भी जीनोम बचते हैं उसको प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए उस डीएनए को संदर्भित करता है जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए उस डीएनए को संदर्भित करता है जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब ये सोच रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसको है, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। यहाँ पर सारे जो होते हैं एनर्जी एकत्र होते हैं जिसके एटीपी के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ह्यूमन बींग्स के जितने भी जीव होते हैं उन सभी में। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को संदर्भित करता है, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके सामान्य जो है प्लास्टिड्स में अपना स्वयं का डीएनए होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है इसके फंक्शन के अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द आरएनए एंड राइट द स्ट्रक्चर
function of RNA. You know that today discussed for here RNA structure and function. One by one explain on this topic. First of all here, what is a RNA? You know that RNA is important and full form is the mostly important here. The full form is RNA is a ribonucleic acid. Ribonucleic acid that help in the synthesis of protein. There is synthesis of the protein in our body. You know that RNA is most important structure here. They help in the synthesis of protein in our body. And this nucleic acid is responsible for a production of new cells in the human body. That's important. This nucleic acid is responsible for the production of new cells in human body. It is usually obtained from the DNA molecules. That's important. It is usually obtained the DNA molecules. RNA is a part of DNA. Show their picture. This clear your mind. But next, but RNA resemble the same as that of DNA. RNA resemble the same as that of DNA. The only difference began that it has a single standard, unlike the DNA which has two standards and it is a consist on the only single ribose sugar molecules in it. That's important. That's consist on only single ribose sugar molecules in it, or hence it's a name of ribonucleic acid. RNA is also referred to as an enzyme as its help in the process of chemical reaction in the body. Note that. Let's see diagram here. You know that on your screen there is a most important here, one side of DNA structure and other side is RNA. You understand there is a part of different, but I remember that there is a part of same here. The RNA is a here ribonucleic acid is a atom 9 uracil and cytosine and guanine. That's important here part here. But DNA here, deoxyribonucleic acid, they're attached with here or thylamines, atom 9s and guanines and cytosine. That's attached here. You know that of helical structure on your screen that is attached by the CGAT. But other side RNA only single. There is AUG. That is single. Why the single? Let's see other picture here. On your screen there is a most important picture here. You know that clear your mind. The DNA here, RNA here part of DNA. You know that they are attached to each other, but upper side is separate. The DNA has the same but two helical structure, but other side is one part of RNA. That's a part of DNA. That's important picture here. And also there is a replication. There are DNA and RNA translation of the protein. There is a replication. Replication is the most important here. Replication here, transcription and is of transcriptions here, a translation here the protein. The RNA DNA is a make a protein. That's important diagram for here. Let's see function of RNA. The ribonucleic acid RNA, which are mainly composed of nucleic acid, are involved in the variety of function within the cells and are found in all living organisms, including bacteria, virus, plants, and animal. You know that is important here. The variety of function within the cells and found in all living organisms. RNA found all living organisms, including bacteria,
virus, plants, animal, the all living organisms here. And this nucleic acid function as the structural molecules in the cell organelles and are also involved in the catalyst of biochemical reaction here. That's important. The different types of RNA are involved in the various cellular process. Let's see. First of all here, facilitated of translation of DNA into the protein. That's important. Also shown in this picture here, of facilitated their translations of DNA into protein and function as the adapter molecules in protein synthesis and serve as a messenger between the DNA and the ribosome, and they are a carrier of the genetic information in all living cell and promotes the ribosome to be choose the right amino acid which is required in the build up the new protein in the body. That's important functions here. The next here, types of RNA. That's important types of RNA here. You know that first here types tRNA, transfer RNA, ribosomal RNA, and third here messenger RNA. You know that three types of RNA here. First of all here transfer RNA, the tRNA. The transfer RNA is held responsible for the choosing the correct protein. That is choosing the correct protein or the amino acid and required by the body in turn helping to the ribosome. That's important transfer RNA here. And ribosomal RNA means rRNA here. There's a functions here in all living cell. The ribosomal RNA play a fundamental role in the synthesis and translation of the mRNA into the protein. That's important here. The ribosomal RNA is all living cells present here. The ribosomal RNA play as a fundamental role in their synthesis and translations of mRNA into proteins. And the next here, messenger RNA. Messenger RNA is the mRNA. That's important. The mRNA play a vital role in the process of transcriptions of during their protein synthesis process. That's important here. Messenger RNA play a vital role in the process of transcriptions of during their protein synthesis process here. Now that's important here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता और विकास, क्लास 10वीं CBSE NCERT साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आरएनए क्या है और आरएनए का संरचना और कार्य प्रणाली को हमने यहाँ पर उजागर करना है, विस्तार पूर्वक चर्चा करना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हमने आरएनए के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि आरएनए को कहते क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। यानी आरएनए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है और यह न्यूक्लिक एसिड मानव शरीर में नई कोशिका के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए आपके शरीर में नए कोशिका का बनना, यह कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड जो है मानव शरीर में कोशिका उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है और ये आरएनए का एक महत्वपूर्ण वर्क फंक्शन है और यह आमतौर पर डीएनए अणु से प्राप्त होती है। यानी जो हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड आती है जो नए कोशिका के उत्पादन में जिम्मेदार होती है, ये जर्नल से देखा जाए तो ये अणु हमें आरएनए से प्राप्त होती है। यानी आरएनए ही हमें जो है ये न्यूक्लिक एसिड देती है जिसके कारण जो है नई कोशिका का उत्पादन होता है। देखा जाए तो आरएनए और डीएनए के सामान्य ही दिखाई देता है। यानी आरएनए और डीएनए में आप काफ़ी फर्क नहीं कर सकोगे, आरएनए डीएनए एक सामान्य ही दिखाई देता है। अंतर केवल इतना है कि डीएनए के विपरीत इसमें एक ही स्टैंड होता है। जैसे कि आप जो प्रीव्यू क्वेश्चन हमने किया है उसमें आपने देखा होगा इसमें जो है 2 हेलिकल स्ट्रक्चर होती है
डीएनए में 2 स्ट्रक्चर से बनी होती है। लेकिन यहाँ पर आरएनए की बात करें तो आरएनए सिर्फ एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और उसमें केवल एक ही राइबोसोम सकड़ा अणु होते हैं। यानी देखा जाए तो आरएनए में जनरल सी बात है कि राइबोस जो है सकड़ा अणु होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल यहाँ निभा रहे होते हैं। इसलिए इसका नाम जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड से हम जानते हैं। आरएनए को एक एंजाइम भी कहा जाता है, यानी आरएनए को आप एक एंजाइम भी कह सकती हो। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यह शरीर में रासायनिक प्रक्रिया में मदद करता है। यानी जितने भी रासायनिक हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होते हैं, इसमें जो है आरएनए का एक महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। इसलिए आप इसको एंजाइम के रूप में भी समझ सकते हो। और समझना है तो आपको आगे चल के जो है डायग्राम को देखना है, और डायग्राम में हम सभी बातों को जो है आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपको जो है माइंड क्लैरिटी के साथ आगे एग्जाम की तरफ बढ़े। चलिए देखते हैं डायग्राम को। यहाँ पर आप साफ शब्दों में देख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर एक तरफ आरएनए है तो दूसरा तरफ डीएनए है, और आप देख सकते हो कि डीएनए जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 जो है जुड़े होते हैं आपस में, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये अटैच जो होता है एडेनोसिन, थाइमाइन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये 4 चीज़ों से अटैच होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखा जाए तो आरएनए किस प्रकार इससे अलग है। आरएनए आप देख रहे होगे कि इसमें सिर्फ एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 नहीं है। जैसे डीएनए में था 2, उसमें नहीं है, इसमें 1 है। और यहाँ पर एक फर्क और आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो थाइमाइन्स नहीं है इसमें। ये में एडेनोसिन दिख रहा होगा आपको, साइटोसिन भी दिख रहा होगा, गुआनिन भी दिख रहा होगा, लेकिन जर्नल सी बात है इसमें थाइमाइन नहीं दिखेगा, उसके जगह पर आपको यूरेसिल दिखेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको AU जो है G नज़र आ रहा होगा, और साथ में C भी आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ A जो है T से ज्वाइंट हो रखा है, और C जो है G के साथ ज्वाइंट हो रखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए, अगर आगे आप समझोगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ मैंने, कि यहाँ पर डीएनए देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा नीचे से तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, लेकिन डीएनए जो है अलग होके अलग स्ट्रक्चर बना दिया है। यानी देखा जाए तो आरएनए सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है, और डीएनए ऊपर देखिएगा तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपको समझ के लिए है। अब चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलके आगे क्या कारनामा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका क्या, दोनों मिलके क्या करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीएनए और आरएनए मिलके क्या किया है। ये दोनों ने मिलके प्रोटीन का निर्माण किया। कहते हैं इंसान का जो संरचना तैयार हुआ है प्रोटीन से हुआ है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, और ये ज़रूरी भी है। आपको बता दूं कि ये काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर रिप्लिकेशन जो नज़र आ रहा है, दिखाया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी दिख रहे होंगे। तो ये मिलके जो है ट्रांसलेशन करते हैं प्रोटीन का, यानी डीएनए मिलके आरएनए मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर मान लीजिए डीएनए नहीं मिलता है तो प्रोटीन का निर्माण यहाँ संभव नहीं हो सकता। इसलिए डीएनए आरएनए का बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है कि ये दोनों मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और डीएनए जो है आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए जो है डीएनए का निर्माण करता है, और ये दोनों मिलके जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है एग्जाम व्यू से, और आपके लिए समझने के लिए भी ये बहुत ही पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं हम फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या दर्शाती है, चलिए देखने के बाद ही पता लगेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आरएनए के कार्य विधि पे हम आ गए हैं।
जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रहेगा। हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, काफ़ी महत्व था। अब डीएनए की कार्य प्रणाली पे भी अगर नज़र डाल लें तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है एक आरएनए जो मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। यानी देखा जाए तो आरएनए किससे बना होता है? पूरी तरह से न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, जो कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार के कार्य में शामिल होता है। और ये बैक्टीरिया, वायरस, पौधे, जानवरों सहित सभी जीवों में पाया जाता है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, सब में आरएनए पाया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, पौधे हो, जानवर हो, सब में जो है जीवित, जितने भी जीवित प्राणी है उस सब में जो है आरएनए पाया जाता है। और यह न्यूक्लिक एसिड कोशिका अंगों में एक संरचनात्मक अणु के रूप में कार्य करता है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है कोशिका के अंदर एक संरचनात्मक अणु के रूप में कार्य करता है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरण में भी शामिल होता है। यानी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है उसके उत्प्रेरण में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए आगे हम इसके कार्य के बारे में, तो विभिन्न प्रकार के आरएनए विभिन्न सेलुलर कोशिकाओं में शामिल होते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। पहली बात तो यही आता है कि डीएनए के प्रोटीन में अनुवाद की सुविधा प्रदान करना। आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली यहाँ पर नज़र आता है कि आरएनए जो होता है वो डीएनए के प्रोटीन में अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन कार्य करता है। यानी आपने देखा भी होगा स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसलेशन की सुविधा प्रदान करता है। कहते हैं डीएनए और आरएनए मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेप्टर्स अणु के रूप में ये कार्य करता है। यानी आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेप्टर अणु के रूप में ये कार्यरत होता है। देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेप्टर के अणु के रूप में कार्य करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेप्टर अणु के रूप में कार्य करता है। और इवन देखें तो डीएनए और राइबोसोम के बीच ये दूध के रूप में कार्य करते हैं। यानी डीएनए और राइबोसोम के बीच ये दूध की तरह कार्य करते हैं। मतलब इसका यही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी मैसेंजर का कार्य करते हैं। और ये मैसेंजर का काम यहाँ डीएनए में और राइबोसोम में आरएनए का काम होता है कि डीएनए से राइबोसोम तक जो मैसेज पहुंचाता है वो आरएनए होता है। और आरएनए यहाँ पर दूध की तरह कार्य कर रहा है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी के वाहक है। कोई भी जीव हो, इसमें आनुवांशिकता जो उन्हें प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब जो काम होता है आरएनए का काम होता है कि आरएनए सभी जीवों में, कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी के वाहक होता है, पहुंचाता है, ट्रांसफार्मर होता है। देखा जाए तो राइबोसोम को सही अमीनो अम्ल चुनने के लिए बढ़ावा भी देता है, जो शरीर में नए प्रोटीन के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी राइबोसोम सही अमीनो एसिड चुनने के लिए बढ़ावा देता है, जो शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ आरएनए का देखिए कितना महत्वपूर्ण उपयोग हमारे समक्ष आया है। यदि आगे हम बात करें इसके प्रकार की, तो आरएनए के प्रकार देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसका जो है ये ट्रांसफर आरएनए होता है। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। तीसरा होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम पहला को हम ट्रांसफ़र को हम स्थानांतरण आरएनए भी कह सकते हैं। दूसरा जो होगा यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए होगा। दूसरा जो होगा मैसेंजर आरएनए, जो कि एक दूध की तरह कार्य करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पहले जो आरएनए होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल टी आरएनए हम लिखते हैं। और इसका कार्य महत्वपूर्ण होता है कि स्थानांतरण आरएनए को सही प्रोटीन या शरीर के आवश्यक अमीनो एसिड चुनने के लिए ये जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो चुनता है वो कहीं ना कहीं आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि ये जो है सही अमीनो चुनने में जो है मदद करता है। दूसरा आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन में एमआरएनए के संश्लेषण
और अनुवाद में एक मौलिक भूमिका निभाता है। यानी देखा जाए तो राइबोसोमल आरएनए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आरएनए में। उसके पश्चात देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए, कहते हैं आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है मैसेंजर आरएनए के रूप में होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान देता है। कहते हैं एमआरएनए जो है प्रतिलेखन की प्रक्रिया में या प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ये भूमिका काफ़ी मान्य होती है और महत्वपूर्ण भी होता है। तो यहाँ पर हमने जो है आरएनए के विस्तार पूर्वक चर्चा किया, इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसकी परिभाषा को देखा, इसके जो है हम कार्यप्रणाली को देखा। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रहता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट्स इम्पोर्टेंट, ड्यूरिंग विच स्टेज कैन बी क्रोमोसोम be seen clearly? You know that the question is clear here. During which stage can be chromosome be seen clearly? Write the feature of eukaryotic and prokaryotic chromosome. You know that that's important question for the exam view here. There is a chromosome be seen clearly and some feature of eukaryotic and prokaryotic chromosome. First of all here, chromosomes are distinctly visible during to the metaphase stage. Metaphase stage of mitosis of a cell. You know that the chromosome, there is a clear scene here, metaphase stage here of mitosis of the cell division. And let's see feature of eukaryotic and prokaryotic chromosome are following here. First of all, here eukaryotic chromosome here, you know that that's important. Eukaryotic chromosome here, they are present in a large numbers. First of all here eukaryotic chromosome, they are present in a large numbers. In a higher organism it occurs in the paired condition. You know that in a higher organism it is occurred in a paired condition here. And the next here, they are visible distinctly only during to the metaphase stage of mitosis. That's important here. They are visible distinctly only during the metaphase stage of mitosis. And the next here, each chromosome consists of two chromatics attached together by a centrome. That's important. Each chromosome consists of two chromatics attached together by a centromer. That's important. And let's see a prokaryotic chromosome here. The next prokaryotic chromosome here, that's important. They are a simple in a composition. They are a simple in a composition when the compare it to their eukaryotic chromosome. And the next, they are generally circular in a shape. They are generally circular in a shape and there is only one chromosome in a cell. That's important here. There is only one chromosome in a cell. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं आनुवंशिकता और विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 10 CBSE NCERT के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है एग्जाम व्यू से कि वो कौन सी अवस्था है जिसके दौरान आप गुणसूत्रों को जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हो। और उसके साथ एक और क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों की विशेषता बताना है। यहाँ पर देखिए हम इतना अधिक विशेषता नहीं बताएंगे क्योंकि हम छोटे तौर पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है। और साइंस का क्वेश्चन जितना छोटा हो, जितना स्पष्ट आंसर हो, उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात तो किस अवस्था के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो ये क्वेश्चन जानना महत्वपूर्ण है। तो कोशिका के समसूत्र के मेटाफेज चरण के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी समसूत्रण विभाजन जब होती है, समसूत्री विभाजन, उस समय जब मेटाफेज आता है तो इसके दौरान जो होते हैं इसके गुणसूत्र स्पष्ट रूप से हम देखने योग्य होती हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और आगे बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों की विशेषता, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों की क्या विशेषता है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की क्या विशेषता है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक गुणसूत्र की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होती है। इसमें उच्च जीवों में यह युग्मित अवस्था में होता है, यानी जो उच्च जीव होते हैं उसमें यह युग्मित अवस्था में दिखाई देता है। हमें देखा जाए तो यह केवल माइटोसिस और मेटाफेज चरण के दौरान ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी माइटोसिस डिवीजन के मेटाफेज के चरण में यूकैरियोटिक जो है साफ रूप से देखा जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ जुड़े हुए 2 वर्ण होते हैं, यानी ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ जुड़े हुए 2 वर्ण होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। उसके पश्चात देखें तो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर कुछ ही पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की तुलना में इनकी संरचना सरल होती है। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की तुलना में इसकी संरचना जो होती है बहुत ही सरल होती है, और इसका आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। जो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की आकार होता है वो गोलाकार होता है, और देखा जाए तो यह एक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र ही होता है, यानी एक कोशिका में केवल एक ही गुणसूत्र होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ रखता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट्स इम्पोर्टेंट, डिफाइन अ जेनेटिक्स। डिफाइन अ जेनेटिक्स एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंडल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। यू नो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। Define the genetics and what is the contribution of Mendel in the field of genetics. First of all, here the branch of biology that deal with the study of heredity and variation now as a genetics. You know that is important. The branch of biology that deal with the study of heredity and variation known as the genetics. You know that what is genetics? Genetics of branch of biology deal with the study of heredity variation is known as a genetics. John Models was the first person to carry out experiment regarding the heredity of content of character from one generation to another in a scientific manner. That's important. George Jonas is Mendel, the first person who is the experiment regarding the heredity and contain the character from one generation to another in a scientific manner. He worked mainly on the garden plant. You know that the Mendels is a select here a garden pea plant. His observation regarding their occurrence of contrasting character in various generations of garden and pea lead him to the interrupt that these are controlled by the unit which he is called factor, and this factor are today known as a gene. This factor, who factor? There is a character of various generation of garden pea lead him to interrupt that these are controlled by the unit which is called factor, and this factor is today known as the genes, and he is also known as the father of genetics. Who is the father of genetics? The Mendel. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता और विकास। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्लास 10वीं CBSE NCERT विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप आनुवांशिक की परिभाषित करें और आनुवांशिक के क्षेत्र में मेंडल का क्या योगदान है। देखिए ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और इसके अंदर कई डेफिनेशन भी हैं जो आपको समझने के लिए पर्याप्त रहेगा। सबसे पहली बात तो आनुवांशिक की क्या होती है, आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है।
ये जानना जरूरी है। अगर हम आनुवंशिकता के अगर बात करें तो कहते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवंशिकता को विविधताओं का अध्ययन कराती है। यानी आप समझ सकते हो, सिर्फ दो वर्ड है। जीव विज्ञान की वो शाखा है यानी ब्रांच ऑफ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं। यही वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिकता और विविधताओं का हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आनुवंशिकता क्या है। जिसमें हम आनुवंशिकता और विविधताओं का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकता कहलाती है। और इसमें गेगर जोहान मेडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कुछ लक्षणों को आनुवंशिकता संबंध में प्रयोग किया। और इससे पहले किसी व्यक्ति ने इस पर बात नहीं सोची थी, लेकिन ग्रेगर जोहान मेडल ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कुछ लक्षणों को आनुवंशिक संबंध को प्रयोग किए। उन्होंने मुख्य रूप से बगीचे के मटर के पौधे पर काम किया, यानी मटर के प्लांट पे उन्होंने काम किया। ये काफ़ी उनकी महत्वपूर्ण सोच थी। देखा जाए तो मटर की विभिन्न पीढ़ियों में विरोधाभासी लक्षण की घटना के संबंध में उनकी टिप्पणियां उन्हें यह व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया और यह इन इकाइयों का नेतृत्व भी करते हैं जिन्हें उन्होंने कारक कहा, यानी इनको फैक्टर कहा। और आज फैक्टर को हम जीन के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो उन्होंने जो मटर के विभिन्न पीढ़ियों में विरोधाभासी देखा, उन्होंने डिफरेंस देखी, वो लक्षण उनके लिए दिमाग में बैठ गया कि पौधे के एक ही लक्षण एक ही पौधे जैसा भी हैं लेकिन उनमें अलग अलग साइज हैं। तो आखिर कैसे हुआ? और ये बात मेडलफ के जो दिमाग में आया और यही जो शुरुआत थी जो है आनुवंशिकता की खोज की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिया योगदान। यानी देखा जाए तो यही विरोधाभासी लक्षण की घटना उनको प्रेरणा दी और जिनको इन्होंने जो है कारक का नाम दिया, लेकिन आज हम जीन के नाम से जाना जाता है और उन्हें आनुवंशिक जनक के रूप में भी जाना जाता है। और आपको पता होगा कि मेंडलफ को जो है आनुवंशिकता का फादर कहते हैं, पितामह कहते हैं। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि आनुवंशिक का जो है पिता किन्हें कहते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आनुवंशिकता का फादर जो है मेडलफ को कहते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। There is the next question arrive here that's important. What is a sex chromosome and types of chromosome? You know that that's an important question here. What is a sex chromosome and here are types. The chromosomes that are responsible for the determination of sex in an individual are known as the sex chromosome. You know that is important. Chromosomes that are responsible for a determination of sex in individual are known as the sex chromosome. There are two types of chromosome here, X chromosome and Y chromosome. That's generally two types here, X chromosome and Y chromosome. The male possesses one X and one Y chromosome here, but female possesses two X chromosome. You know that's important. The male here possesses a X and Y chromosome, and other side females possesses two chromosome, XX chromosome. That's important here. And let's see types of chromosome generally here. The types of chromosome, that's important. There is a centromeres here. You know the types of centromeres here. That's important. The first centromeres here, metacentric. First of all here, metacentric. It is a chromosome with the centromere near the middle and two chromatids of equal length. You know that this metacentric is a chromatids are equal length. And second here, submetacentric. Submetacentric here, the centromere is situated slightly
closer to one end than the other. That's important. There is a centromere is situated slightly closer to one end than the other, and thus one chromatic is a slightly longer than to the other. That's important point here. And the next here, acrocentric. Acrocentric, here the chromosome is situated near one end of the chromosome, and thus one achromatic is very long while the other is very small. You know that the chromatic one here is very long and other is very small. And telocentric here. Telocentric here, the centromere is situated at the tip of the chromosome. You know that is important. And let's see here are centromeres on figure here. You know that on your screen there is a centromere here. Centromere is a 4 types here, generally explained here. And the centromeres, there are first of all telocentrics. I have already described there are telocentrics here. And second is acrocentrics here. And third, submetacentric here. And last is a metacentric. You know that is important. And the upper side is a P arm and lower side is a Q arm. That's important. And centromere here, a center of part. This is a 2 circle, the show of centromeres here. That's important diagram here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर अनुवांशिकता और विकास, क्लास 10वीं CBSE NCERT साइंस और प्रौद्योगिक, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। और हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लिंग गुणसूत्र क्या है और गुणसूत्रों के प्रकार क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिंग गुणसूत्र की, तो कहते हैं लिंग गुणसूत्र जो होता है किसी भी व्यक्ति में लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये जनरली पुरुषों में ही होता है। कहते हैं कि पुरुषों में गुणसूत्र जो पाया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जो क्रोमोसोम किसी व्यक्ति में लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, कि जो क्रोमोसोम किसी व्यक्ति में लिंग को निर्धारण करता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स गुणसूत्र, एक होता है वाई गुणसूत्र। तो आप समझ गए होंगे एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। कहते हैं पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है एक्स गुण दोनों जो है उनका गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर लड़का होना या लड़की होना सारे की सारी बातों जो है पुरुषों पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाई क्रोमोसोम पुरुषों के होते हैं वो लड़के के लिए जिम्मेवार होता है, और पुरुषों के जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो लड़कियों के लिए जिम्मेवार होता है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है पुरुष जो है गुणसूत्रों को निर्धारित करते हैं। यहाँ महिलाओं में से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही जो है मिलता है। आगे अगर हम बात करें गुणसूत्रों के प्रकार यानी सेंटोमेयर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ देखा जाए सेंटोमेयर्स की बात करें तो काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं पहला जो हमारे समक्ष आया है वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और यह एक गुणसूत्र है जिसमें मध्य के पास सेंटोमेयर होता है और दोनों जो है वर्णक्रम सामान्य लंबाई के होते हैं। यानी मेटासेंट्रिक जो होती है सेंटर में पाया जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उप मेटासेंट्रिक की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो उप मेटासेंट्रिक होती है यहाँ सेंटोमेयर का छोर से दूसरे छोर से थोड़ा करीब स्थित होता है, और इस प्रकार एक रंगीन दूसरे की तुलना में थोड़ा लंबा जरूर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम तीसरी की बात करें एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं यहाँ गुणसूत्रों के एक छोर के पास स्थित होता है, और इस प्रकार एक वर्ण बहुत लंबा है जबकि दूसरा बहुत छोटा होता है। एक लंबा होगा दूसरा छोटा होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें हम टेलोसेंट्रिक फेस, तो कहते हैं टेलोसेंट्रिक में ये सेंटोमेयर गुणसूत्र के सिरे पर स्थित होता है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर गुणसूत्रों की जो है 4 यहाँ पर रूल बताई गई है। अब डायग्राम भी हम देखेंगे तो ये काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि आखिर गुणसूत्र हम कहते किसे हैं और ये सेंटीमीटर की जो हम बात कर रहे हैं आखिर सेंटीमीटर होता कैसे है। आपने एक्स ग्रुप क्रोमोसोम देखा है, उनको ही जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में जो है इसको बताया गया है। चलिए इस बात को आपको और क्लैरिटी के साथ बताएं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा यही गुणसूत्र जो एक्स क्रोमोसोम है आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके सेंटर में जो आपको 2 गोले दिख रहे हैं उसको हम सेंटीमीटर कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन गुणसूत्रों की जो संख्या ऑटोमेटिक अपने आप में बढ़ती है। पहले अगर आप देखोगे टेलोसेंट्रिक्स जो है इसमें बिल्कुल ही ऊपर आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा जहाँ सेंटीमीटर दर्शाया गया है। अगर हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं एक्रोसेंटीमेट्रिक्स में तो यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर जो सेंटीमीटर्स है उसके आगे जो है गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने लग गई है। अगर तीसरा में अगर आप देखोगे तो सब मेटासेंट्रिक्स में कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक्स में जो है जो हमारा सेंटीमीटर्स है जो 2 गोले दिख रहे होंगे उसे सेंटीमीटर्स कहते हैं। उसमें देखिए आगे कितनी जो है क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है, गुणसूत्र कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। और एटलीस्ट जब आप मेटासेंट्रिक में आइएगा तो मेटासेंट्रिक में जो है गुणसूत्र बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके जो बना हुआ ऊपर का सिरा होता है उसे हम पी आर्म्स के नाम से जानते हैं और जो निचला सिरा होता है जो बनता है उसे क्यू आर्म्स कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रोमोसोम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम व्यू से ये महत्व भी रखता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट्स इम्पोर्टेंट, how is a sex determination in human being? That's an important question here. How is a sex determination in human being? The male sex gametes have a X and Y chromosome. The male sex gametes have a X and Y chromosome, whereas the female sex gametes have a 2X chromosome. Whereas sperm containing a Y chromosome fused with the ovum contain a X chromosome, the zygote develop into the male. That's important here. The female gamete have a 2 and there is when sperm contain a Y chromosome fused with the ovum contain to the X chromosome. There is mother X chromosome, there is zygote develop into the male. And when a sperm contain the X chromosome fused with the ovum or contain X chromosome, the zygote develop into the female. That's important here. And thus the sex and the individual is determined by the sex chromosome X and Y, which is present in the male chromosome. That's important. X and Y chromosome present in the only male chromosome. That's important. The boy and the girl depended here a father gamete. That's important point for the exam view. And let's see step by step for this processing. Let's see step by step on this processing. There is the humans have a 23 pairs of chromosome. And out of these 23 pairs, 22 pairs are autosome and only 1 pair is there a sex chromosome. That's important. Out of these 23 pairs, but 22 pairs is the autosome and only 1%, 1 pairs is the sex chromosome and which actively take part in the process of sex determination. And the next, both male and female carry 2 sets of sex chromosome. Both male and female carry 2 sets of sex chromosome here. And male have a 1X and 1Y, means XY sex chromosome in which both are the active. Males here X and Y chromosome and the 2 chromosomes here and both are active. And other side female has a both X chromosome, means XX sex chromosome in which 1 is active only. There is a 1 active only. That's important. The XY sex determination system is found in a human. That's important. XY sex determination found in human, but not a human. There is a mammals and some insect and few plant species also.
That's important. And all children will be inherit a X chromosome from their mother. The all children, male and female, there is a X chromosome for the mother, and that there whether they are a boys or girl, and thus the sex of the children will be determined by the types of chromosome inherit from their father. The father is a main suspected here, or dominated by the X and Y chromosome here. A child who is inherit Y chromosome will be a boy, and who inherit X chromosome will be a girl. There is a Y chromosome is here a boy, and the X chromosome donated by there is girl, and sex determination boy or girl. That's important. But first of all, most important point here, a male semen has a whole approximately 50% of Y sperm cells, and other is a 50% of X sperm cell. You know that is important. And the boy and the girl are 50-50 chances here. The male semen hold approximately 50% of Y chromosome and 50% of X chromosome sperm here. And therefore there are a possibility that a man have a 3 or more children of a single gender. You know that is important. The X and the here is important. And the let's see diagram here. Here show the diagram on screen. That's important for the exam view. Sex determination in human being. That's important. You know that there is a parents here, mother and father, and gametes, reproductive cells here, and the last here a zygote forming after fusion here. You know that father is donated for there is the male X chromosome, produce a female, and the father here again X chromosome is a mother, there is a female, but other side father is a Y donated for the mother X chromosome. In this condition, the male child formations, and other side Y chromosome and mother X chromosome, there is a male child here. That's important diagram here. It means to 50-50 chance for the girls and the boy. That's important. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकता और विकास काफ़ी महत्व रखेगा। क्लास 10वीं CBSE NCERT साइंस और प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है कई मायने में महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और एग्जाम व्यू से भी अपना महत्व रखता है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आपको तो पता ही होगा कि मनुष्य जो है उसमें 2 इंडिविजुअलों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। देखा जाए तो ये सभी बच्चों को पता होता है कि जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। लड़का होना या लड़की होना ये जो है पुरुषों पर डिपेंड करता है। तो ये साधारण बात तो थी। अब हम इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करें कि नर लिंग युग्मकों में जो है X एंड Y गुणसूत्र होते हैं। जैसे हमने बताया कि पुरुषों में यानी नर में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा यानी स्त्रियों में युग्मों में 2 जो है X गुणसूत्र होते हैं, यानी XX 2 गुणसूत्र होते हैं। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले डिम्ब के साथ संलग्न करता है तो युग्मज एक नर में विकसित होता है। यानी देखा जाए तो पुरुष का X और स्त्री के X लड़कियों को जन्म देता है, लेकिन अगर पुरुष का Y गुणसूत्र लड़कियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो इस कंडीशन में जो है नर का विकास होता है। जब एक गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले डिम्ब के साथ संलग्न करता है तो मादा विकसित हो जाती है। तो ये बात क्लियर है कि इसमें अगर X पुरुष का और X स्त्री का अगर मिलता है तो इससे जो है स्त्री का जन्म होता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण गुणसूत्र X और Y द्वारा निर्धारित होती है जो पुरुष गुणसूत्रों में मौजूद होता है। यानी देखा जाए तो लड़का होना या लड़की होना ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है स्त्रियों पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारी बातें पुरुषों पर डिपेंड करता है क्योंकि पुरुष में ही जो है लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब चलिए इसी को हम डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। मैचअप करेगा तो यहाँ पर जर्नल सी बात है, फीमेल की जो है उत्पत्ति होगा। अगर दूसरा गायमेट स्त्री के साथ ले और पुरुष के पहले गायमेट को जो है अगर मिलाएं, फिर भी फीमेल की जो है जन्म होगा। लेकिन अगर वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिल जाता है तो इस कंडीशन में जो है नर का जो है उत्पत्ति होता है। वहीं फादर का एक्स वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से अगर मिलता है फिर भी मेल जन्म लेता है। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष का जो है 50-50 यहाँ पर निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पुरुष पे डिपेंड करता है, यानी फादर पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा शिशु जन्म ले रहा है वो लड़का होगा कि लड़की। और ये बात और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन सा जो है गुणसूत्र जो है लड़की के गुणसूत्र से अटैच हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गंदी परंपरा है कि अगर लड़की जन्म लेती है तो भी माता को मारा जाता है, जो गलत है। हमें पता है कि माँ के पास सिर्फ एक्स गुणसूत्र ही होता है। लड़का होना या न होना पुरुषों पर निर्धारित होता है। पुरुष का जो गुणसूत्र जाता है उसी से जो है लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पर स्त्रियों को जो है मारना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना हमारे समाज के लोगों के लिए सही नहीं है। और ये आम हमारे समाज में देखने को मिलता है। अगर किसी के घर में लड़कियां जन्म ले रही होती है तो कहीं ना कहीं माँ को ही सताया जाता है। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति को समझ होता है कि लड़का होना या लड़की होना जो है पुरुष के गैमेट पे डिपेंड करता है। इसलिए कहीं भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो आप दूसरे बच्चों को समझा सकते हो। देखिए दोस्तों, 10वीं क्लास में इस बात को इसलिए इसको काटा नहीं गया है सिलेबस से क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और शायद एग्जामिनर इसी बात को लोगों तक समझाना चाहता है कि हमारे समाज की जो है नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर लड़की जन्म ले रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है पिता का है और पिता का एक्स गुणसूत्र ही माता गुणसूत्र से जो है यहाँ पर मिलता है, जिसके कारण लड़कियों का जन्म होता है। लेकिन हमारे समाज को एक बात समझना चाहिए कि लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दोनों को अच्छे एजुकेशन दोगे, अच्छा संस्कार दोगे तो जनरल सी बात है आज लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। आज लड़कियां जब चांद पे जा सकती है, ट्रेन चला सकती है, तो लड़कियां किस काम से पीछे है। वो हर समय अगर उनको मौका देने की आवश्यकता है। अगर आप लड़कियों को पढ़ाते हो, लिखाते हो और अच्छा संस्कार देते हो तो वो भी आपका देखभाल कर सकती है, आपका जीवन का जो है सफल बना सकती है। इसलिए लड़कियों को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, लड़कियों को सशक्त बनाना चाहिए, समझदार बनाना चाहिए और लड़कियों को जो है प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में आए दिन लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो कदाचित उचित नहीं है और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की ढिलैया रवैया ही है, क्योंकि बहुत ऐसे कांड हुए हैं जिससे जो है लड़कियों की दुर्दशा को उजागर करते हैं। और बड़े बड़े मंत्री लोग जो है आपस में सिर्फ इन चीज़ों का मौका का फ़ायदा उठाते हैं और अपने वोट बैंक बनाते हैं। तो ये सिर्फ गलत है। कहते हैं जहाँ भी औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता है हर एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को सशक्ता से लड़ना चाहिए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब चलिए इन्हीं सब बातों को हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर इन बातों को हम जो है चरण दर चरण समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है इन सब के पीछे कारण क्या बनता है। देखा जाए तो पहली पॉइंट यही कहता है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी मनुष्य में 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं और इन 23 जोड़ों में से जो है 22 जोड़े ऑटोसोम होता है। 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम होता है और केवल एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो जो है यहाँ पर
सेक्स क्रोमोसोम है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पुरुषों में पाया जाता है। देखा जाए तो 22 जोड़े हमारे क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। नर और मादा दोनों में लिंग गुणसूत्र 2 सेट होते हैं। नर और मादा दोनों में ही लिंग गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं। देखा जाए तो पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र यानी एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसमें दोनों सक्रिय होते हैं, यानी एक्स भी सक्रिय होता है और वाई भी गुणसूत्र सक्रिय होता है। तो ये पुरुषों में होता है और वाई होना जो है लड़के का विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं देखें तो स्त्रियों में दोनों जो होते हैं एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और जिनमें से एक सक्रिय होता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषों में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र जो होते हैं सक्रिय होते हैं, लेकिन स्त्रियों में एक ही सक्रिय होता है। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर करता है कि स्त्रियों में सिर्फ एक ही गुणसूत्र सक्रिय होता है और पुरुषों में दोनों होता है। मान लीजिए पुरुषों में एक्स जो है सक्रिय है और एक सक्रिय नहीं है, तो इस कंडीशन में या तो पुरुषों के द्वारा दिए गए गैमेट के कारण सिर्फ लड़की लड़की ही जन्म लेगा या लड़का लड़का ही जन्म लेगा अगर एक रहा तो, लेकिन इसमें दोनों ही सक्रिय होते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन रेयर केस होता है जहाँ पर एक ही सक्रिय रहता है, तभी तो लड़का लड़का ही होता है और लड़की लड़की ही होती रहती है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है और इसमें लड़कियों का कोई यहाँ पर गलतियाँ नहीं देखने को मिलता है। तो हमारे समाज की नज़रिया को बदलने की आवश्यकता है। कहते हैं एक्स वाई लिंग निर्धारण प्राणी मनुष्य स्तनधारी कुछ कीड़ों और कुछ पौधों के प्रजातियों में भी पाई जाती है। हम ये सोचते हैं कि एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र जो है सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है, मनुष्य में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी स्तनधारियों में और कुछ हद तक कुछ कीड़ों में और कुछ पौधों में भी एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सभी बच्चों की अपनी माँ से एक गुणसूत्र विरासत में मिलेगा, यानी सभी बच्चे जो होंगे माँ से एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलेगा, भले ही वह लड़का हो या लड़की हो, यानी दोनों में ही माँ का जो है एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चे का लिंग उसके पिता से विरासत में मिले गुणसूत्र के प्रकार से निर्धारित होती है, यानी जो गुणसूत्र बच्चों को मिलता है, जो विरासत में मिलता है, वो सिर्फ पिता से ही मिलता है। कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा ये पिता से ही मिलता है, माँ से सिर्फ एक्स गुणसूत्र ही मिलता है और लड़का लड़की दोनों को ही मिलता है, लेकिन पिता से जो है लिंग बच्चों का मिलता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो पिता पे जो है निर्धारित करता है। देखा जिस बच्चों को एक्स गुणसूत्र विरासत मिलता है वो लड़का होता है और जिसे पिता से एक्स गुणसूत्र विरासत मिलता है वो लड़की होती है, यानी इस तरह जो है लड़का लड़की जो है उत्पत्ति होती है। देखा जाए तो एक पुरुष के वीर्य में लगभग 50% वाई शुक्राणु कोशिकाएं और अन्य 50% एक्स शुक्राणु कोशिकाएं होती है। यानी देखा जाए तो पुरुषों में जो वीर्य होते हैं, जो स्पर्म होता है, उसमें 50% वाई शुक्राणु होते हैं और जो है 50% एक्स शुक्राणु होते हैं। तो ये देखा जाए तो जो पहले माँ के अंडाशय तक पहुँचेगा, चाहे वो एक्स पहुँचे चाहे वाई पहुँचे, अगर एक्स पहुँचा माँ के अंडाशय तक तो जर्नल सी बात है लड़की का जन्म होगा, और जब वाई पहुँचेगा माँ के अंडाणु तक तो लड़के का जन्म होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक समय में देखा जाए तो 50% वीर्य में जो होता है एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब जिसकी शुक्राणु की क्षमता जितनी होगी, जल्दी पहुंचता है अंडाशय तक, वो उसी लड़का हो जाता है या लड़की बन जाता है। तो ये सब पिता के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं दिखाता हूँ इस बातों को जो है शुक्राणु कैसे जो है डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं, कौन कौन से फेस में। ये क्वेश्चन हमने पहले भी की थी, लेकिन इसको एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेंटर है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसमें जो है आपको दिख सकता है कि टेलोसेंट्रिक्स आपको दिख रहा होगा।
अक्रोसेंट्रिक दिख रहा होगा, सब मेटा सेंट्रिक दिख रहा होगा और मेटा सेंट्रिक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है एग्जाम व्यू से, और ये डायग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। और इस डायग्राम से जो है गुणसूत्रों की जो है अपने अपने रूप में मिलता है, यानी पिता और माता दोनों से ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ एग्जाम व्यू से रखता है, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी की मदद करने की विश्वास रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि सभी बच्चों तक सही ज्ञान का जो है प्रकाश जाए, और सारे बच्चे जो है सही अपना जो है अच्छे से अपना लाइफ को स्पेंड करें। क्योंकि दोस्तों आज लाइफ में बहुत संघर्ष है। कहते हैं आज यहाँ पर जिस प्रकार जो स्पर्म माँ के अंडाशय से मिलता है उसी का निर्माण होता है, तो इसी प्रकार आज हर जगह संघर्ष है। जो पहले आगे बढ़ेगा वही ज़िंदगी में कामयाब भी होगा। और ये बच्चे जब जन्म लेता है उसी समय से निर्धारित हो जाती है कि जीवन एक रेस है, जो पहले जाएगा वही कामयाब होगा। तो ये रेस हमारी ख़त्म नहीं होती है, जीवन में हर समय चलती रहती है। और ये रेस में आपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करना है, और सफलता प्राप्त तभी होता है जब हम एक दूसरे को सहायता करें, मदद करें। तो इसलिए सोचना नहीं होता है दोस्तों, दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपको त्रिपाण सेंटर की मदद करना होगा। आप कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त हो इसी प्रकार, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सभी वीडियो से आप जो है समझ सकोगे, देख सकोगे। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।